welcome back champions. Hope everyone is doing fine. So children, today we will learn about capitalization method and weighted average profit method. But before that, let's recap the mother of all the methods to value the goodwill, that is super profit method, right? So we will have a small recap. We will revise the formulas, right? So super profit method. Now you will tell me the formula, right? Super profit is equal to, yes Diksha, tell me what is the formula of calculating super profit. Okay, super profit, you are saying average profit, correct, minus what? Be loud Diksha. Average profit minus normal profit. Very good. Sit down Diksha. Normal profit. Yes Sakshi. Now you tell me how to calculate average profit. Average profit. Yes Sakshi. Okay. Total profit. Okay. Total profit upon number of years. Very good Sakshi. Good job. Sit down. That's correct. Okay Anu, can you tell me how to calculate normal profit? Yes Anu. Normal profit, yes, capital invested, very good, capital invested into, yes Anu, rate upon 100, very good Anu, keep it up, sit down. So we know that super profit is equal to average profit minus normal profit. Average profit is equal to total profit upon number of years. Normal profit is equal to capital invested into rate upon 100. Now children, if you see on this 100, say for example the rate is given as 10%. That means business on every 100 rupees is earning 10 rupees. Every 100 जो बिजनेस ने लगाया है 100 रुपीज लगाए हैं उसके ऊपर फॉर्म कितना अर्न कर रही है, बिजनेस कितना अर्न कर रहा है, जो भी रेट होगा लाइक 10%, मीन्स हर 100 रुपए के ऊपर द बिजनेस इज अर्निंग 10 रुपीज, राइट? यही मतलब होता है ना इसका. नाउ इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट? कैपिटलाइजेशन मेथड चिल्ड्रन, under this method we are going to learn how to value goodwill with two different methods, but for your knowledge, for your information, answer will be same under both the methods. So let's see capitalization method. We have the first one is capitalization of super profit, right? First is your capitalization of super profit, and the second one is, I am dividing the board in two parts, capitalization of super profit, and the second one is capitalization of average profit, right? So these two methods are there. Now first is your capitalization of super profit. I will use one example here to make you understand how we are going to calculate goodwill, right? So first is your capitalization of super profit method. Say for example, average profit example. Average profit is given as 24,000. Average profit is given as 24,000. Capital invested is given as rupees 1,50,000. Right? I am repeating, average profit is given as 24,000. Capital is given as 1,50,000. And rate is given as 12%. Rate का मतलब जो हमको रिटर्न मिलेगा, जितना मिलना चाहिए, right? So rate is given as 12%. Now we will calculate super profit, right? Super profit again, formula is average
प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में एग्जांपल में क्या क्या गिवन है। एवरेज प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन in this example 24,000. Normal profit we have to calculate. For normal profit what we need children? Normal profit. Yes Deepti, tell me how you will calculate normal profit in this example. What should I write? 1,50,000. Yes, very good. 1,50,000 into 12 upon 100. Excellent Deepti, sit down. So this comes to 18,000, right? So average profit is given as 24,000, capital 1,50,000 is given in the example, rate is given as 12%. So super profit we have calculated average profit minus normal profit. Now super profit, अच्छा अभी calculate करना है, तो super profit is equal to, yes Akriti tell me, super profit is 24,000 minus 18,000. Yes, good Akriti. This comes to 6,000 rupees, right? So super profit is 6,000 rupees. Now the formula of capitalization of super profit. Now listen carefully. Capitalization of super profit, goodwill is equal to super profit multiply by जो यहाँ पे जो ये मैंने क्या बोला कि हर 100 रुपीज के ऊपर बिजनेस जो है वो 10 रुपीज अर्न कर रही है, राइट? तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन में आप क्या करोगे, आप जो आप इसको क्या करोगे, अब आपको एक्चुअल में पहले मतलब समझो कि सुपर प्रॉफिट को जब हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, मींस उस सुपर प्रॉफिट के पीछे जो छुपा हुआ कैपिटल है हम वो फाइंड आउट करेंगे, राइट? अभी तक हमने क्या किया था, नॉर्मल हमने देखा कि 100 रुपीज के ऊपर जो है फॉर्म अगर 10% रेट है तो 10% कमा रही है। अब हमको ये 100 रुपीज निकालने हैं, राइट? क्या निकालने हैं, ये 100 रुपीज हमें निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, जो चीज निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हो अपॉन रेट, इसको आप क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका रेट। सो दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको यहाँ पे क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में जो है गुडविल कैलकुलेट करनी है, एंड बेसिकली इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, जो सुपर प्रॉफिट है उसके पीछे कितना कैपिटल लगा हुआ है आप वो फाइंड आउट करोगे यहाँ पे। और वो कैसे करोगे, जो आपका रेट दिया हुआ है, राइट, उसको आप रिवर्स कर दोगे, मीन्स आपको अब ये वैल्यू चाहिए, हमको 100 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 100 को ऊपर कर देंगे, रेट को नीचे कर देंगे, आपका जो है गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर formula to calculate goodwill under this method, that is capitalization of super profit method, right? अब जो है इसको हम देखते हैं कितना आता है सुपर प्रॉफिट हमारा। 6,000 into 100, रेट इज गिवन एज 12%। हमने इसको कर दिया, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 50,000 रुपीज। ये हमारी गुडविल आ गई है। अब ये गुडविल कैसे आई है, राइट? अभी तक जो हमने प्रीवियस मेथड्स किए थे उसमें क्या था, नॉर्मल आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया होता था, उससे आप मल्टीप्लाई कर देते। दैट मेक सेंस ऑल्सो कि हाँ हम ये जो गुडविल है 3 इयर्स तक एंजॉय करेंगे या 2 इयर्स तक करेंगे और 4 इयर्स तक करेंगे, बट इसमें तो डायरेक्ट उन्होंने आपको गुडविल बता दी 50,000 आ गई, बट कैसे आएगी। नाउ लेट्स टेक, ऐसा करते हैं, इसको फर्दर इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। आई एम यूजिंग दिस साइड ऑफ द बोर्ड, उसके बाद फिर हम इस मेथड के ऊपर आएंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल कैपिटल जो है आपका, से फॉर एग्जांपल कैपिटल और ये आपका है प्रॉफिट, मींस कितना कैपिटल लगाया कि आपको इतना जो है, ये आपका 12% रेट इज गिवन, इसी को कंटिन्यू करते हैं, राइट? से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज जब कैपिटल लगाया तो उसके ऊपर 12% प्रॉफिट कितना हुआ, ऑब्वियसली 12,000 रुपीज, राइट? देन हमने लगाया 1,50,000, अगेन 12% निकाला, इसके ऊपर कितना हुआ 18,000 रुपीज, राइट? देन अगर हमने 2 लाख रुपीज कैपिटल लगाया तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 12%, 24,000 रुपीज, करेक्ट? देन हमने 3 लाख लगाया अगर, तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना होना चाहिए 36,000, करेक्ट? अब इस टेबल को देखकर मुझे ये बताओ कि हमारा जो ऑन एन एवरेज जो हमारी अर्निंग है दैट इज 24,000 रुपीज, हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे, राइट? हम लोग यहाँ पे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 12,000 को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए,
ऑब्वियसली यू विल से 1 लाख रुपीज। हम उसको उल्टा करके देखते हैं कि अगर 12,000 मुझे ऑन एन एवरेज प्रॉफिट अगर अर्न करना है तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज, करेक्ट। अगर मुझे 18,000 अर्न करना है ऑन एन एवरेज, मुझे 1,50,000 जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे 24,000 जो है मेरा एवरेज प्रॉफिट अगर मुझे अर्न करना है तो मुझे कितना कैपिटल लगाना चाहिए, 2 लाख रुपीज। अगर मुझे 36,000 अर्न करना है तो मुझे 3 लाख लगाना चाहिए, राइट। अब आप देखो हम कौन से ब्रैकेट में आ रहे हैं, हम इस ब्रैकेट में आ रहे हैं। दैट मीन्स मेरे को कितना कैपिटल मेंटेन करना चाहिए था, 2 लाख रुपीज, बट मैंने कितना किया एक्चुअल में, मैंने किया 1,50,000। 1,50,000 की लगाने के बाद भी मेरे को 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। आपका जो है नॉर्मल प्रॉफिट वो हो सकता है बाकी सबके लिए 18,000 हो, लेकिन मेरा बिजनेस जो है वो 1,50,000 लगाने के बाद भी 24,000 अर्न कर रहा है। क्या है ये बीच में जो 2 लाख जो बोल रहे हैं कि मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन हम तो खाली 150 के बाद भी 24,000 अर्न कर रहे हैं। तो बीच में जो ये हिडन फैक्टर है ये क्या है, दिस इज गुडविल, राइट। बिकॉज ऑफ द गुडविल द फर्म इज अर्निंग 24,000 रुपीज विद कैपिटल 1,50,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। गुडविल जो है ये 50,000 की, इसकी वजह से जो बिजनेस है जो फर्म है वो 24,000 एवरेज प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। अब आप देख लो आपका गुडविल वही आएगा। आप अगर माइनस करते हो 2 लाख माइनस 1,50,000, आपका आंसर वही आएगा 50,000। ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आपको करना नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझाया है कि 50,000 की जो ये वैल्यू आई है ये कैसे आई है, गुडविल कैसे निकला है ये, राइट। तो ये हिडन फैक्टर है जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो 1,50,000 के साथ भी एवरेज प्रॉफिट 24,000 अर्न कर रहा है, राइट। नाउ आई विल रब द बोर्ड, देन वी विल understand this capitalization of average profit.